4,000 rupees within an hour right now. This was the only part जिसमें मैम ने खुल के तारीफ करी कि that was a good answer. So hello everyone, I am Tanish Srivastav, student of Integrated MBA in IIT Mandi. So this is the second video of my series of all about IMBA at IIT Mandi. So in this video I will be telling you about my interview experience, all the things that happened throughout the interview, including what was there before the interview. And at the end I will try to give you some tips or some inferences that I draw that would help you to crack this interview. So things started from the waiting room. They say first there was document verification, then we were made to sit in a waiting room and turn by turn they were calling out the names of individuals. So interview room में मेरी क्या स्थिति थी कि others, many of them around me were very frightened and they were shivering. Their hand on the table, it was shivering, and I was not at all in this kind of कोई डर लग रहा हो या फिर क्या पूछ लेंगे, हाय मेरा होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे को. मैं एकदम नॉर्मल सा काम सा था. ओके, I will give my best only when I'm happy, so why not be happy, why do fear and all. And I was doing some meditative practices as well, so my mind was calm. So maybe mind being calm was a plus point for me. I was also very happy and contented when I was entering the interview room, seeing 4 people in front of me. I was like, अब तो कुछ मज़ा आने वाला, अब तो कुछ मज़ेदार होगा, ऐसा था. And also जब वेटिंग रूम में हम बैठे थे तो जैसे एक एक करके वो आते हैं ना कि नाम लेने, मान लो कोई भी रैंडम आदमी, अभिषेक आ जाओ, हमें ऑर्डर नहीं पता था, मेरा नाम कभी भी आ सकता है. तो जैसे ही भैया आते थे वी आर ऑल लाइक, अरे कि मेरा नाम तो नहीं है, मेरा नाम तो नहीं, सब अलर्ट हो जाते थे. फिर लगता है किसी और का नाम, अच्छा चलो अभी टाइम है. फिर वो आया, फिर फाइनली मेरा नाम आया. मैं बोला अब चलो जंग में जाने का टाइम आ गया है. देन आई एंटर्ड द इंटरव्यू रूम. 4 people were there and one was the chairperson of the School of Management. I can't name him, but I saw his photo on the website or some brochure maybe. I saw his photo, I knew he is the chairperson of the school and the director of this program. So I greeted all of them, sat at my place, and the interview room was slightly different than my perception structurally. I thought a different, YouTube पे मैं देख रहा था IAS interviews, so they look different than what was the setup in this. And by the way, my interview was in PEC, Punjab Engineering College in Chandigarh. So yeah, if some of you don't know, then you don't have to go to Mandi for the interview. Interview would be, for us it was in Chandigarh, and maybe for you they are planning to take it in Delhi or some place in South as well. I don't know, but more centers would be there this time. So 4 people were there, including school chair sir. So school chair sir only asked me the first question. Guess what? Introduce yourself. Introduce yourself is the one question you must have a best suited answer for, because it is like a menu for them to start with. अब जो बताओगे इंट्रोडक्शन में, उसी में से वो आगे आपसे क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं. So be careful about your introduction. You are giving a menu to the panel, to the interviewers. उनमें से वो सवाल पूछने वाले हैं आगे आपसे. एंड अपना इंट्रोडक्शन दिया मैंने, जो भी था, मैं कहाँ से आता हूँ, स्कूल में क्या क्या किया एंड ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर्स. एंड एज आई सेड, माई 5th सब्जेक्ट वॉज AI. एक सर थे वहाँ पे, वो कुछ लिख रहे थे नीचे. आई सेड AI एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट. ही वॉज लाइक, उनकी आंखें चमक गई AI सुन के. सो मेरे को लगा अच्छा चलो कुछ तो पूछने वाले हैं AI के बारे में. आई गॉट रेडी. सो देन टोल्ड अबाउट माई प्रोजेक्ट्स. AI सब्जेक्ट में मैंने क्या प्रोजेक्ट्स किए थे. एंड दे आस्क्ड नॉट द प्रोजेक्ट्स आई डिड, but what was my role in those projects. So I was the leader of the project and did the documentation work. So उन्होंने पूछा कि initially उन्होंने पूछा कि leader थे तो क्या करते थे, like you only asked others to do, people you didn't work anything for yourself.
So I said no, I did documentation as well. So उन्होंने documentation में पूछा आपके document में कितनी pages थे, document का format क्या था. So basically, as I said in my last video, कि they are checking what you claim to know, whether you actually know it or not. So yeah, this is a point to note. And also then they asked, did you use ChatGPT for this documentation work? I said no, because like the thing was, for the documentation we were given a template sort of thing, so we just had to fill it up. So ChatGPT was not needed, so we didn't use. And at that time I was not even very like familiar with it as well, because ChatGPT उसी साल launch हुआ था, so मैंने ज़्यादा use नहीं किया था तब तक. So I said कि no, मैंने use नहीं किया था. So उन्होंने बार बार पूछा इस सवाल को, एज इफ कि वो 4 बार पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा कि हाँ मैंने यूज़ किया था, बट मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैंने नहीं यूज़ किया था. एंड स्टेइंग ऑनेस्ट इज़ द ईजिएस्ट थिंग दैट कुड बी डन. सो फिर उन्होंने पूछा, डोंट यू यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर गुड? सो ही वॉज ट्राइंग टू confuse me on that, but I said yeah, I would use ChatGPT or technology for good when it is necessary. It was not necessary, so I didn't use. And for the facts and statistics and all, I used Google. So before that I said I keep originality in my things, and then I said I used Google. So उन्होंने मेरे को मेरी बात में कंफ्यूज करने की कोशिश करी कि फर्स्ट यू आर सेइंग दैट यू डोंट यूज, यू गिव योर ओन थॉट्स, देन यू आर सेइंग यू यूज्ड गूगल. देन मैंने कहा कि लाइक आई didn't use Google to give ideas. I just use the fact and stats because anyway I can't produce it for myself. I have to take it from somewhere. So they were agreed for that. Okay. And हाँ अच्छा, इस चीज़ में मैंने एक लाइन बोली थी. उन्होंने पूछा आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, मतलब कहीं इधर से पूरा आपने खुद लिखा. सो मैंने बोला था फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट मैंने खुद लिखा. सो दे पिक द वर्ड्स, सो बी कॉशियस विद योर वर्ड्स. उन्होंने पूछा फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट व्हाट डज इट मीन. तब मैंने बोला कि हाँ मैंने गूगल यूज़ किया. उसके बाद फिर उन्होंने पूछा व्हेन डिड यू यूज़ ChatGPT फॉर द लास्ट टाइम. ChatGPT द लास्ट टाइम. एक्चुअली मैंने ChatGPT तो नहीं, Meta AI जो व्हाट्सएप पे होता है उसका यूज़ किया था मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए. लाइक आई गिव द कंटेक्स्ट टू द AI एंड इट आस्क्ड मी क्वेश्चंस एंड आई रिस्पॉन्डेड एज एन इंटरव्यूई. सो मैंने वहाँ पे यूज़ किया. बट ChatGPT का यूज़ मैंने कहीं और किया तो ऐसी चीज़ें वो बताने लायक नहीं लगी थी, प्रोफेशनल भी नहीं थी वो. सो मैंने सोचा कि लाइक एक बार ही दिमाग में आया था, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कुछ उल्टा ऐसे कुछ जो सुनने में अच्छा लगे ऐसा कुछ बोल देता हूँ. बट फिर मेरे को लगा कि ऐसे कुछ भी बोलने से बेटर है, लेट्स बी ऑनेस्ट. मैंने बोला आई यूज़ ChatGPT लास्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू. सब हंसने लगे उसमें कि प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू आई यूज ChatGPT. सो देन उन्होंने कहा कि ओके, सो यू सेड कि यू कीप ओरिजिनलिटी एंड नाउ फॉर इंटरव्यू यू आर यूजिंग ChatGPT. सो आरंट यू कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ? I was like, no, I used it. I just took assistance from it. ChatGPT didn't determine my answers because, of course, ChatGPT don't know my career goals. I know. So it helped me, but not determine my answers. So हाँ, इस पॉइंट से वो सेटिस्फाइड थे. फिर हमारे स्कूल चेयर सर थे. लाइक इनिशियली स्कूल चेयर सर जो है उन्होंने ज़्यादा पूछा. तो उन्होंने पूछा कि डिड यू अप्लाई समवेयर एल्स एंड या फिर कोई और एग्ज़ाम वगैरह दिया है. सो आई सेड या, मैंने जोसा में अप्लाई किया है बट आई डिडंट गेट व्हाट आई वांटेड टू. इनिशियली मेरे को लगा कि वो दे आर चेकिंग कि इफ़ दे सेलेक्ट मी विल आई स्टे और नॉट और विल आई लीव समथिंग. सो मैंने बोला, तब मैंने इस पॉइंट को कैटर करने के लिए मैंने बोल दिया कि कुछ अच्छा मिला नहीं. नहीं, मैंने ये नहीं बोला, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला. आई डिडंट गेट व्हाट आई वांटेड टू. सो लाइक इन रिस्पॉन्स ही सेड ओके व्हाट डू यू वांटेड. मैंने बोला कि सम लाइक CSE इन अ गुड NIT टू इवेट द क्वेश्चन. लाइक मैं कुछ भी और बोलता तो इट वुड बी डिफिकल्ट. दिस वॉज द सेफेस्ट थिंग आई कुड इन्फर एट दैट टाइम. तब मैंने ये भी बताया कि मेरा लाइक अपार्ट फ्रॉम BTech like JEE for BTech paper 1, I attempted paper 2 that is for B planning and B architecture. So in that I got a very good percentile, like 99.7 I think. So that was my percentile in B planning, but I didn't want to do B planning actually. I told this but they didn't give much attention to this point.
हाँ, सो थ्रू आउट द इंटरव्यू मुझे ऐसा लगा कि लाइक कुछ चीज़ों पे वो ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, कुछ चीज़ों पे कम अटेंशन दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं इंटरेस्टिंग नहीं बोल रहा तो अटेंशन नहीं दे रहे। लाइक दो प्रोफेसर आपस में बात करने लग जा रहे हैं तो फिर और तीन लाइक चार लोग थे, चार में दो आपस में बात कर रहे हैं, एक मुझे सुन रहा है, एक कुछ और कर रहा है। सो ऐसा नहीं था कि मेरे आंसर्स की वजह से वो अटेंशन पे या नहीं पे कर रहे, उनका पता नहीं फॉर सम रीज़न द अटेंशन गिवन टू वेरियस रिस्पॉन्सेज वॉज डिफरेंट। एंड लाइक उनके लाइक रियल टाइम मुझे अपने रिस्पॉन्सेज को ऑल्टर करना पड़ रहा था विद रिस्पेक्ट टू हु इज़ लिसनिंग। लाइक हाँ, कौन सुन रहा है, कौन कितना अटेंशन दे रहा है। कुछ पॉइंट्स पे चारों के चारों लोग मेरे को ऐसे लाइक बहुत फोकस है देखने लगते हैं, किसी पॉइंट पे केवल एक व्यक्ति देख रहा होता है, कभी कभी कोई दो लोग बात कर रहा होता है। तो मुझे हर सिचुएशन के हिसाब से अपने रिस्पॉन्स को बदलना पड़ रहा था। हाँ, सो फिर इसके बाद हमारे स्कूल चेयरपर्सन सर हैं, वो चले गए थे। लेटर आई गॉट टू नो दैट कि वो 3 पैनल्स थे, तो तीनों पैनल्स में वो थोड़े टाइम के लिए जा रहे थे। सो फॉर इन माई पैनल ही वॉज लाइक अबाउट हाफ ऑफ द टाइम एंड देन ही वेंट टू द नेक्स्ट पैनल। आई वॉज आस्क्ड टू टेल अबाउट माई क्वालिटीज़। सो मैंने अपनी क्वालिटी के तौर पर मेन चीज़ बताई, आई एम ऑर्गेनाइज्ड and like there you can see organization in everything that I do. I am very much organized in my time schedule and in my every other thing. I am very organized and I like to the point precision. So उन्होंने बोला ओके आप ऑर्गेनाइज अच्छा करते हो, here is a table, like इंटरव्यू पैनल टेबल थी जिस पर काफ़ी सारा सामान रखा था। So they asked me to arrange and organize this table at the level best that you think you can. So मैंने ऑर्गेनाइज किया उठ के। आई टुक देयर परमिशन, कैन आई शिफ्ट योर पेन एंड ऑल, लाइक उनकी जो भी चीज़ें थी उनको मैं क्या चीज़ ऑर्डर कर सकता हूँ, मतलब हाँ श्योर। सो उसका मैंने चेंज किया बट देयर वाज नॉट मच टू चेंज। तो मेरे को जितना ठीक लगा मैंने उतना चेंज किया। एंड वन थिंग वॉज मैंने जिस पे लाइक एक रजिस्टर सॉर्ट ऑफ था जिस पे वो कुछ नंबर स्कोरिंग दे रहे थे आई थिंक। सो मैंने उसको टच नहीं किया था। पेन उनका आधा तिरछा पढ़ा था, कॉपी नोटबुक टेढ़ी रही थी, मैंने उसको टच नहीं किया था। मैंने बाकी सारी चीज़ें बेटर कर दी थी। कुछ अननेसेसरी रखा था लाइक जूस के पैकेट्स उन सबको हटा दिया और कुछ टेढ़ा मेढ़ा रखा था उसे ठीक कर दिया, जो भी है। सो फाइनली दे हो गया आपने कर दिया जो आपको लाइक एडजस्ट करना था। लाइक यस दिस इज़ द बेस्ट अरेंजमेंट फ्रॉम माई साइड। तो उन्होंने लाइक दिस पेन इज़ लाइक दिस, ये पेन ऐसे रखा है, ये कॉपी टेढ़ी, आपने इसको चेंज नहीं किया। देन आई सेड दिस इज द लाइक दिस शुड बी एट योर कन्वीनियंस। आप इस पर यू आर यूजिंग इट, सो यू शुड डिटरमाइन वेयर टू पुट इट। आई शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट थिंग। सो आई थिंक लेटर की इससे ये परसेप्शन क्या होगा कि ही मैनेजेस टिल द पॉइंट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड टू एंड ही वोंट इंटरफेयर इन द थिंग्स ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू, एंड दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाएगा बेसिकली। मैं शायद ये पॉइंट अच्छा लगा हो उन्हें, मेरे को ऐसा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि in the introduction I told my hobby is reading. So in reading part he ma'am was there. Ma'am asked name the last 2 books you have read. I said Inner Engineering by Sadhguru and the biography of Netaji Subhash Chandra Bose ji. So they picked up on Netaji's biography part. And मैं ये बुक का नाम लेने से पहले cautious था कि because I knew whatever I will be telling they will be bombarding me with questions about that thing. So like honestly I read those 2 books, so I was confident with that. And ma'am asked with really intelligent questions. First she asked who wrote this, so I told his nephew Shishir Kumar Bose. And then he picked ki biography by a family member, don't you think it will be biased? Then before I could answer anything she rephrased her question like suppose your mother is a famous personality and we have to write a biography on her. So will I as a son write a better biography, or she like the ma'am would write better as a third person? So she was trying to link it with the bias part. So I said like talking about unbiasedness, yours would be more unbiased because you are like viewing it from the third party view, so you see things clearly. But talking about depth and detailing, that would be there in my write-up because I know my mother more than anyone else, so I would write better on that topic. So she was like affirmative for this answer. उन्होंने बोला कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया था कि दैट वाज अ नाइस आंसर समथिंग बिकॉज हाँ एक और पॉइंट, अभी तक ये पूरे इंटरव्यू में हर क्वेश्चन पे वो न्यूट्रल रहते हैं। लाइक उनके जेस्चर से आप
इतना लगेगा कि हाँ दे आर ओके विद योर आंसर, यू कैन कंटिन्यू फर्दर, बट उन्हें अच्छा लगा रिस्पॉन्स या ख़राब लगा आपका रिस्पॉन्स, ये वो जेस्चर से शो नहीं करते अपने। दिस वॉज द ओनली पार्ट जिसमें मैम ने खुल के तारीफ करी कि दैट वॉज अ गुड आंसर। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग, यू वोंट गेट जेस्चरल फीडबैक कि आपने अच्छा बोला कि नहीं बोला। So they will be neutral. So yeah, be prepared for that. So next, there was a sir who gave me a situation, business situation I would say, no, not business situation, but like normal situation. इसमें उन्होंने पूछा कि suppose you have to fetch me 5,000 rupees within an hour right now. In an hour, come earn 5,000 and give me. How would you do that? I asked कि can I take a moment to think about it? So yeah, they said sure, take your time. तो मैंने सोचा, मैंने कहीं एक वीडियो में देखा था कि टी शर्ट सस्ते में खरीदूंगा, उसे महंगे में बेच दूंगा, लाइक कुछ कैलीग्राफी वगैरह करके। तो मैंने उसमें बताया सर आई कैन टेक अ चीप टी शर्ट एंड सेल इट फॉर हायर प्राइजेस। सो दे सेड इन 1 hour, 1 घंटे में तो मार्केट भी नहीं पहुँचोगे, चंडीगढ़ में जिस जगह पे थे। So I was like, yeah, 1 hour in that it is not possible. The only feasible thing that came to my mind was let's take a loan and repay it later. So that in 1 hour, I said in 1 hour I can take a loan and give it to you. Then I can repay it whenever I want. So उनका कमेंट था, ये तो वो बात है इसकी टोपी उसके सर। हाँ, फर्स्ट टाइम वो हिंदी पे आ गए खुद ही, इसकी टोपी उसके सर वाली बात हो गई है। फिर उन्होंने इसी पिकअप किया, ओके सपोज यू हैव टू टेक अ लोन। सो सपोज शी इज़ अ रिच लेडी, लाइक जो सर थे उनके बगल में मैम बैठी थी, उनको पॉइंट करते सपोज शी इज़ अ रिच लेडी। फिर मैम ने आगे पे अब किया, सपोज मैं एक रिच लेडी हूँ एंड यू हैव टू आस्क मी टू गिव अ लोन ऑफ 5,000। सो हाउ विल यू लाइक अप्रोच मी, बिकॉज इवन अगर ये भी मुझसे 5,000 मांगे, मैं तो 500 रुपये नहीं दूंगी इनको, मतलब सर के लिए। सो आई वोंट इवन गिव 500 टू हिम एंड टू अ स्ट्रेंजर, व्हाई वुड आई गिव 5,000? कन्विंस मी फॉर दैट। तब जब उन्होंने पॉइंट ही बोला था कि सपोज आई लुक लाइक अ रिच पर्सन, मैंने बोला यस मैम यू एक्चुअली लुक सो सर ने बोला कि यू हैव स्टार्टेड एक्चुअली कुछ वर्ड उन्होंने बोला था कि अभी से पटाना शुरू कर दिया, ऐसे कुछ का इंग्लिश में कुछ बोला था, अभी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला या दैट वाज माई फर्स्ट लाइन। So like a bit of humor is also recommended. They themselves will start their humor. If you are continuing with that in a healthy way, that is also a good point, I think. And then I can try to convince her in my ways, and yeah, she asked for my if I can give my phone as a collateral. Then I said कि ना फ़ोन पे मेरा बहुत काम होता है, दिन भर मैं फ़ोन पे ही काम करता हूँ, so that as a collateral मैं कैसे दे सकता हूँ। फिर मेरे को लगा कि कुछ और तो मैं लाइक दे नहीं सकता हूँ। सो ऐसा है कि मेरे कार में कुछ शायद रखा होगा, तो उसमें कुछ लाके हम दे सकते हैं। तो मैंने बोला गिव योर कार ओनली एज अ कोलैटरल। तो मैंने बोला नो, दैट बिलोंग्स टू माई पेरेंट्स, हाउ कैन आई गिव दैट? फिर उन्होंने बोला कि या दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ एवरी 17-year-old और 18-year-old। सो लाइक मैं वैसा एग्री नहीं करता, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल मैंने कुछ बोला नहीं, आई स्टेड न्यूट्रल ऑन दैट कमेंट। Then मैंने कहा एक्चुअली आई कैन गिव यू माई फोन alone because that only belongs to me. All the rest of the things I have right now is of my parents. I can't give you. Like 1 साल हो गए इंटरव्यू के, तो कुछ पॉइंट्स मे भी मिस हो रहे हो, बट दैट वॉज ब्रॉडली द मेजर पार्ट ऑफ इट। एंड एट लास्ट they will be asking you maths. So a separate teacher was there, like out of 4 people I told. First was our school chair that kept moving between the panels. 2 teachers, like one ma'am and one sir were there who were asking really great questions. And 4th was a ma'am who was there only to ask maths. So she started by, like, they were checking your fundamentals only. First question, what's a function? I told, like, bookish definition says this, but the way I interpreted it is that, like, how one variable depends on the other, that dependence is shown by a function or something. मैंने कुछ बोला था। हाँ, बुकिश NCERT क्या बोलता है, कुछ ऐसा डायग्राम बना के उसे कनेक्ट करता है, कुछ करता है, मैंने वो भी बता दिया था। उस समय तो दिमाग में सब फ्रेश था अभी। देन शी आस्क्ड व्हाट्स लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी बता दिया कि एक फंक्शन को अप्रोच कर रहा है, एंड कंटिन्यूटी मतलब जो भी है आपको पता ही होगा, मोस्ट ऑफ यू आर JEE स्टूडेंट्स, सो यू नो व्हाट आर LHL, RHL। एंड उसके काफ़ी केसेस पूछे थे कि यहाँ से कंटिन्यूस है और इस पॉइंट पे है, फिर वो आगे ऐसे जा रहा है, मतलब अलग अलग केसेस जो आपने पढ़े होंगे मे बी। सो उन केसेस पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। तो इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर, दैट इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज़ इंटीग्रेशन?
सो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, बट एग्जैक्टली होता क्या है इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन, वो आपको जानना चाहिए। एक तो आंसर होगा कि हाँ आपने इन्फिनिट स्ट्रिप्स में कट कर दिया फिर उसका सम ले रहे हो, बट आई वुड रिकमेंड गिव अ बेटर डेफिनेशन दैन जस्ट कटिंग स्ट्रिप्स एंड ऑल। सो मैंने कुछ और आंसर दिया था, क्या दिया था एग्जैक्टली याद नहीं, बट हाँ कुछ अपने वर्ड्स में लिखा था कि वी आर समिंग समथिंग दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, ऐसे कुछ करके कुछ बोला था मैंने। हाँ थोड़ा ग्राफ आप ड्रॉ करके बस एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पूछा था। तो इंटीग्रल्स में मैंने एरिया ऑफ द कर्व बोला, और भी कुछ 2-3 चीज़ें जो भी उस समय ध्यान में थी। फिर वो बोल रहे थे व्हाट मोर। अब जब हमने लाइक आपको पता होगा 11th-12th में हम क्यों इंटीग्रल यूज़ करते थे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर्स में केवल हमसे एरिया अंडर द कर्व निकलवाते थे। तो एरिया अंडर द कर्व और थोड़ी बहुत चीज़ों के अलावा मेरे पास ज़्यादा थे नहीं आंसर्स, एंड शी केप्ट ऑन आंसरिंग ओके व्हाट नेक्स्ट, व्हाट एल्स, लाइक क्या क्या और एप्लीकेशंस होते हैं। तो एट लास्ट आई सेड इट इज़ यूज्ड फॉर एंटी डेरिवेटिव। सो एंटी डेरिवेटिव, फिर उन्होंने डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया कि व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव। सो उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि स्लोप ऑफ अ फंक्शन होता है और उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो डेरिवेटिव प्लॉट होता है, जो भी है मैक्सिमम मिनिमम के केसेस पूछे कि ग्राफ ऐसे है तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, और इस सिचुएशन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की कुछ चीज़ें पूछी। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब चीज़ें पूछी। फिर मैट्रिसेस पे काफ़ी सवाल पूछे थे, लाइक हाँ एक सिचुएशन दी थी मेरे को, मैट्रिक्स बनाया था, फिर पूछा था कि दिस वुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट। मेरे को एग्जैक्टली मैट्रिक्स याद नहीं आ रही, बट फंडामेंटल बेस कुछ ऐसा था कि ये लाइक जीरो मैट्रिक्स है कि नहीं, या फिर इट वुड स्टिल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट। उसमें डायगोनल मैट्रिक्स में एक एंट्री जीरो कर दी थी, फिर पूछ रहे थे कि दिस वुड स्टिल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट। सो मैंने पहले कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, फिर उन्होंने पूछा आर यू श्योर, तो मैंने थोड़ा सोचा कि लग रहा है कुछ गलत बोल दिया। फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर लगा नहीं बोल तो मैं सही रहा हूँ। फिर मैंने और कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ नहीं ये इट सीम्स ट्रू टू मी, एंड ऐसे 1-2 बार उन्होंने कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश करी, तो फिर मैं अपने आंसर पे स्टिक रहा। फिर घर आके मैंने देखा कि जो मैंने बताया था एकदम सही था, सो माई कॉन्फिडेंस वॉज लाइक ऑन द राइट थिंग। सो हाँ मैंने सारे मैथ्स के क्वेश्चन बेसिकली सही बताए थे। सो दिस वॉज द होल इंटरव्यू, दैट मच आई रिमेंबर। लाइक इंटरव्यू पूरा शायद आधा घंटा 40 मिनट, हाफ एन आवर तो चला था इंटरव्यू, और अभी भी शायद 20-25 मिनट की वीडियो बन गई है। सो कुछ पॉइंट्स में भी मिस हो गए, बट मोस्ट पार्ट ऑफ इट आई हैव कवर्ड, and some meaningful inferences from that which you should keep in mind for your interview, that is interview tips for you is first know what you are claiming to know। अगर आपको वो नहीं आता जो आपको आता है, जैसे कहीं पे मैंने सुना था कि किसी बंदे से पूछा था कि लाइक उसका हॉबी, लाइक उसकी फेवरेट थिंग क्रिकेट थी, सो उसको क्रिकेट की बॉल का वेट, क्रिकेट की बैट का वेट, और लाइक काफ़ी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट कुछ फंडामेंटल चीज़ें क्रिकेट के बारे में नहीं पता थी, सो उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो जो आप क्लेम कर रहे हो आपको आता है, यू शुड नो अबाउट इट, एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर इज प्रिफर्ड इफ़ यू आर engaged in extra curricular in your school days, do emphasize it, beat anything। like ऐसा मत सोचना कि MBA रिलेटेड हो या फिर टेक्नोलॉजी कोडिंग रिलेटेड हो, या फिर ऐसा कुछ उनके इंटरेस्ट से मैच करता हो वही मैं बता सकता हूँ। बीट एनीथिंग, आप डांस करते हो, स्पोर्ट्स में हो, आप गिटार बजाते हो, आप साइकिल चलाते हो, या फिर सिंपली गाने सुनते हो, कुछ भी आप एक्स्ट्रा करते हो, सो टेल दैट इट इज़ अ प्लस पॉइंट एंड विद नॉलेज अबाउट इट। अगर आप ये भी बोल रहे हो कि आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, देन यू शुड बी रेडी विद द टाइप्स ऑफ म्यूज़िक, कितने टाइप के म्यूज़िक्स होते हैं, कौन सा आपको जॉनरा प्रेफर करते हो, एंड उस जॉनरा के फेमस सिंगर्स का नाम बताओ। फिर ऐसा कुछ भी वो पूछ सकते हैं। सो जो भी आप बोल रहे हो यू शुड नो अबाउट इट। एंड थर्ड थिंग, बी कॉन्फिडेंट। अब ये ऐसे बोलने में तो आसान लगता है बी कॉन्फिडेंट, बट हाँ मैं भी ये बोल सकता हूँ बी कॉन्फिडेंट वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, एंड डोंट बी कन्फ्यूज्ड। जब आपको कंफ्यूज करने में लाइक वो आपको आप ही की बातों में कॉन्ट्रडिक्ट करने की और उलझाने की कोशिश करेंगे बार बार। इवन मैथ्स में तो करेंगे ही, और अंदर के इंटरव्यू में भी कितने आपने भी सुना कैसे उन्होंने मेरे को मेरी बातों पे पकड़ा। हाँ एक और पॉइंट था जो मैं अभी इंटरव्यू के बीच में मिस कर दिया। कहीं पे मैंने बोला था कि मैंने थोड़ा वर्ड फैटिग शायद कर दिया होगा, लिटरली मैं बहुत बार बोल रहा था बीच में कि लिटरली दिस लिटरली दैट। सो उन्होंने मुझसे पूछा था, हाँ ये मेरा अभी बोलने में मिस हो गया, कि यू आर सेइंग लिटरली, व्हाट लिटरली मीन्स। इवन जो आप बोल रहे हो आपको शब्दों का मतलब पता होना चाहिए अपने। लिटरली का मतलब मेरे को इतना पता था कि
literally means we are not giving an analogy, we mean it actually, like not metaphorical. But at that time not metaphorical word मेरे दिमाग में नहीं आया, so मैंने बोला I was like using literally as a replacement of actually, like we say actually this happened, actually that happened, so I was saying literally this was true, like literally it was this way. So I said I'm using it in place of actually. So या आपको वर्ड चॉइस के बारे में भी आप क्लियर होने चाहिए, नो योर वर्ड चॉइस, आप वर्ड जो चूज़ कर रहे हो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए. योर कम्युनिकेशन शुड बी लाइक इनफ फ्लुएंट. लाइक एक चीज़ होती है जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं लाइक इंडियंस, वी आर नॉट, इंग्लिश इज़ नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज. सो लाइक जो अच्छे स्कूल्स में सिखाया जाता है तो फिर वो इशू नहीं रहता, बट काफ़ी लोग के साथ इशू रहता है कि वो सोचते नहीं है इंग्लिश में, तो एट द मोमेंट उनके दिमाग में दो चीज़ें चल रही होती हैं. एक तो द आइडिया कि उन्हें क्या बोलना है, दूसरा वो मन में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं. सो दैट थिंग शुड नॉट बी देयर विद यू. लाइक आपको ट्रांसलेट करने में दिमाग में टाइम नहीं लगना चाहिए. इंग्लिश शुड कम आउट ऑफ यू नेचुरली. इट शुड नॉट बी लाइक आप दिमाग में ट्रांसलेट करोगे, हाँ मेरे को हिंदी में ये बोलना है, उसे इंग्लिश में ऐसे कन्वर्ट करता है. सो दैट शुड नॉट बी देयर. इट टेक्स टाइम एंड इट हैम्पर्स योर कॉन्फिडेंस एज वेल. एंड ये भी लगता है कि आप यहाँ मतलब क्लियरली दिख जाता है कि यू आर नॉट प्रोफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज. So this is one thing. Before this thing should be corrected before the interview. Give mocks if your English is not that good. Give mocks, try to think in English. Maybe that would help. And yeah, improve English. So do let me know what more you want from this. अगर आपको इंटरव्यू का जो भी मैंने बताया इससे कोई डाउट्स हो या फिर कुछ और डिटेल में जानना हो, so you can comment that on in the comment section. And maybe I will make some short videos further to answer your queries, or you maybe connect on email ID. I will be giving that in the description, so you can mail me if necessary. We can connect on WhatsApp or on call. So that was it from my side. Thank you so much for watching. And my third video is about to come. That would be on my life after joining the IMBA program. Like initially some discomfort was there. I was leaving my family for the first time, and hostels, induction program, the courses, the food here, and some events which was conducted in the college, and some internships that I got. A lot. Even I went back to my school as a celebrity. So many things were there. All of this I will be telling in my coming video. So stay tuned. Thank you so much.